we'll be talking about plasma and plasma proteins. In the previous section, we have already covered what is the composition of plasma, and although we have already covered what is the composition of blood, but today this lecture will be only concerned regarding the composition and functions of the plasma. So plasma, as we know, it is the fluid component of the blood. Right? Blood is having two components. मतलब blood के पास plasma भी है और blood के पास formed elements भी है. But plasma, if you are concerned about plasma, so plasma is the fluid component of the blood, right? And it constitutes, or rather we say, which constitutes 55% of the blood. मतलब blood में से 55% जो है, that is plasma, right? Now this plasma forms a very important and the crucial part of blood. In plasma, if we just go briefly over the composition once again, so plasma is forming 55% of the blood, right? And it is composed of two things, right? It is composed of two things. 8% it is having solid solutes. At 8% there are solid solutes, and the rest 92% we say that there is water. In this 8% of solid solutes, we have discussed that there are two, that is organic and inorganic, right? In organic there are three, right? Again, further it is divided into three categories. That is, one is proteins, right? We say there are plasma proteins. Then there are non-protein nitrogenous substances, non-protein nitrogenous substances, and also other substances, right? And in inorganic we have again two, that is cations, the molecules which are positively charged, and anions, the molecules which are negatively charged. In cations we are having sodium, potassium, calcium, right? We are having magnesium as well. So these are the cations that are richly present in the blood. Anions, the most common anion found in the blood is bicarbonate, and after that it is chlorine, and also phosphate is also there, and sulfate molecules are also present. This composition we have talked about in detail in the previous section, right? In proteins we are having albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin. In non-protein nitrogenous substances we are having all the wastes that are there in the body: wheat urea, wheat urine, wheat uric acid, xanthine, hypoxanthine, creatinine, creatine. In other substances we have glucose, triglycerides, right? All these things are there. Now, in this previous section, the last topic that we covered was serum, right? So we'll go through the serum very briefly, right? There are certain extra points that I want to add up here in the serum. Okay, so proteins. In proteins I'm writing only two, right? We have fibrinogen. You guys are now well aware of what all plasma proteins are there, right? I am only writing two of those, fibrinogen and prothrombin, right? Now these two, I told you in the previous video that they're clotting proteins. That means जब भी हमारी body पे कहीं पे भी एक कट लगा है और bleeding को रोकना है, तो वो ये जो दो proteins है ये उस चीज में काम करेंगे, right? They're clotting proteins. अगर तो मैं प्लाज्मा से इन clotting proteins को हटा दूं, सिर्फ दो नहीं होते, there are other also clotting proteins, right? अगर मैं इन दो प्रोटीन्स को clotting proteins को अगर मैं हटा दूं, so I am saying that these are clotting proteins, right? They're clotting proteins. अगर मैं प्लाज्मा में से clotting proteins को हटा दूं, तो उसको बोलेंगे हम सीरम, right? Now let us take a look how serum is extracted from this plasma. In the previous section we have talked about what is serum, what is its importance, ठीक है, और किस तरीके का liquid fluid है, right? So that is one thing. Now how serum is extracted? सीरम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, देखो, सीरम को एक्सट्रैक्ट करना है मतलब हमको ब्लड में इनको हटाना पड़ेगा, राइट? इनको हटाने के लिए द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी डन कि ब्लड को क्लॉट करा दो, ठीक है? अगर तो ब्लड क्लॉट हो गया, एक क्लॉट जो बन गया है ब्लड में, उसमें ऑब्वियसली क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने 100 ml ब्लड लिया, ओके, दिस इज 100 इन अ टेस्ट ट्यूब, आई हैव टेकन 100 ml of blood, this is whole blood, right? Now in this blood I am trying to do coagulation मतलब क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है? वैसे हमको कोई कट लगा, ठीक है, और अंदर की ब्लीडिंग स्टॉप हो या बाहर एक क्लॉट बन जाता है, राइट? तो जब इस ब्लड की कोएगुलेशन हुई, तो कोएगुलेशन कौन कराता है, क्लॉटिंग कौन कराता है? ये दो प्रोटीन्स कराते हैं, राइट? ये दो प्रोटीन्स कराते हैं.
अब क्योंकि इन दो प्रोटीन्स ने क्लॉटिंग करा दी तो यहां पे ये पूरा एक थिक सॉलिड मास बन गया। क्या बन गया? एक थिक सॉलिड मास। अब क्योंकि ये थिक, क्योंकि यहां पे मेरा पूरा फ्लूइड है, ये पूरा फ्लूइड है, राइट? ब्लड इज अ फ्लूइड। अब मैंने क्या करा? कोएगुलेशन करा दी, मैंने क्लॉटिंग करा दी, तो जिसकी वजह से यहां पे क्या बन गया? एक सॉलिड डेंस मास बन गया, राइट? अब क्योंकि ये सॉलिड है, इसका ऑब्वियसली जो वेट है वो फ्लूइड से ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस सॉलिड dense mass, this solid dense mass, it settles down, right? It is going to settle down. अब जो ऊपर बचा, that is obviously not 100 ml, right? अब तो 100 ml नहीं है, कुछ कम ही बचा, तो अब जो बचा मेरे पास, that is serum, that is basically serum. तो मैंने क्या करा है? मैंने ब्लड को क्लॉट करा दिया, मैंने ब्लड की कोएगुलेशन करा दी। तो जब मैंने ब्लड की कोएगुलेशन कराई, कोएगुलेशन मतलब ब्लड की क्लॉटिंग करा देना, जब मैंने ब्लड की क्लॉटिंग कराई तो जो मेरे पास प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन्स थे, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स थे, जो क्लॉट करने में मदद करते हैं, अब उन्होंने क्लॉट बना दिया। द सॉलिड डेंस मास दैट इज फॉर्म्ड इज द क्लॉट ओनली, राइट? दिस हियर इज द क्लॉट. Now once the clot is formed, because it is a solid dense mass, it settles down. And the rest of the fluid that is present, this fluid I am talking about, the rest of the fluid that is present, ये पूरा मेरे पास अभी भी क्या है? Fluid. This is serum, right? So in order to extract the serum, we need to clot the plasma, or rather the blood. ठीक है? अब इस सीरम की एक बहुत खास बात, ड्यूरिंग क्लॉटिंग, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, क्लॉटिंग के दौरान हमारी क्लॉटिंग प्रोटीन्स तो इन्वॉल्व हो ही रही है, नो डाउट, दे आर फॉर्मिंग द बेसिस फॉर द कोएगुलेशन, राइट? लेकिन प्लेटलेट्स, रिमेंबर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स के बारे में, तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये भी क्लॉटिंग में मदद कराती हैं, राइट? बेसिकली लेट्स सपोज ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मतलब जिसमें से ब्लड बहता है, ब्लड फ्लो करता है। यहाँ पे इंजरी हो गई, ये वाली जो ब्लड है हमारा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल की वॉल थी वो टूट गई, राइट? ये बीच में से ऐसे खाली हो गई, तो जितना भी ब्लड इधर फ्लो कर रहा है, राइट, जितना भी ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब वो बाहर आने लग जाएगा, देयर इज ओजिंग आउट ऑफ ब्लड, राइट? जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू रिपेयर, इस यहां पे रिपेयर करने के लिए जो प्लेटलेट्स हैं, दे विल गैदर अप, तो मैं ब्लू कलर से प्लेटलेट्स बना रहा हूं, ये प्लेटलेट्स एक साथ जुड़ जाएंगी, ठीक है? ये प्लेटलेट्स क्या कर गई? एक साथ जुड़ गई। ये प्लेटलेट्स एक साथ जुड़ के एक मास बना देती है, राइट? अब इसको, इन प्लेटलेट्स को एक साथ जुड़ने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मदद करती है, दैट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? जब भी कभी इंजरी होती है ना, आगे इन ब्लड फिजियोलॉजी ओनली वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का मतलब होता है प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ब्लड, राइट? आई विल राइट इट हियर, hemostasis. Hemostasis is the prevention of loss of blood. ठीक है? तो अगर तो मुझे ब्लड के लॉस को रोकना है, लॉस ऑफ ब्लड को, प्रिवेंशन मतलब रोकना, उसे बंद करना, राइट? अवॉइड करना। तो अगर तो मुझे लॉस ऑफ ब्लड को रोकना है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ये एक ब्लड वेसल है, इसमें इंजरी हो गई, राइट? अगर इसमें इंजरी हो गई तो देयर विल बी गैदरिंग ऑफ ऑल द प्लेटलेट्स, सारी प्लेटलेट्स क्या कर जाएंगी? क्लस्टर बना देंगी, एक मास बना देंगी, ठीक है? अब ये जो मास बना है प्लेटलेट्स का, लेट्स सपोज दिस इज दैट, ठीक है? ये वो मास बना है प्लेटलेट्स का। इनको आपस में और टाइटली जोड़ने के लिए हमारा जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, जो हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इस प्रोसेस के दौरान जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। It will be converted into fibrin. If some of you, if you guys are making notes, then do remember, ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो नोट्स में मत लिखना, क्योंकि आगे बहुत डिटेल चैप्टर है जब अपन ये पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझे कि सीरम बेसिकली है क्या, वो बना कैसे है, और उसमें से ये सॉलिड डेंस मास अलग कैसे हुआ, ठीक है? तो अभी के लिए ये मत लिखना जो मैं समझा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। ओके, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक इंजरी हुई, प्लेटलेट्स आकर इकट्ठी हो गई, है ना? अब इस क्लॉटिंग प्रोसेस के दौरान, ब्लड की प्रिवेंशन के दौरान, हीमोस्टैसिस के दौरान, फाइब्रिनोजन प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, और जैसे ही ये फिब्रिन प्रोटीन बना, फिब्रिन प्रोटीन इज लाइक दिस, थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह होता है। वो धागा क्या करेगा? आई एम डिनोटिंग फिब्रिन प्रोटीन फ्रॉम द ब्लैक कलर। वो धागा इसको इस तरीके से लपेट लेगा दोनों साइड से, ठीक है? अब क्योंकि लेट्स सपोज
दिस इज वन प्लेटलेट एंड दिस इज वन प्लेटलेट, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना रही हैं, तो फिब्रिन प्रोटीन की थ्रेड्स इसको आपस में इस तरीके से बांध देंगी, राइट। तो जिसकी वजह से क्या बन गया, एक पूरा का पूरा मास बन गया, एक वी कैन से लंप बन गया, राइट। तो दिस इज हाउ द क्लॉट इज फॉर्म्ड, राइट। तो यहाँ पे वही हुआ है, जो सॉलिड डेंस मास की मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने ब्लड को निकाला बॉडी के बाहर, 100 ml ब्लड लिया, उसकी कोएगुलेशन करा दी, कोएगुलेशन का मतलब उसकी क्लॉटिंग करा दी। तो यही ऐसा ही कुछ प्रोसेस हुआ होगा जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा ये जो सॉलिड डेंस मास है वो बैठ गया। और इसमें सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, कभी कभी आरबीसीज भी ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, आरबीसीज भी ब्लड में है, तो प्लेटलेट्स को यहाँ पे आके वी कैन से क्लस्टर तो बनाना ही है, क्लॉटिंग तो उनको हीमोस्टैसिस तो करना है, ब्लड को रोकना है, तो उनके साथ साथ ना कभी कभी आरबीसीज भी फंस जाते हैं इस जाल में, फिब्रिन प्रोटीन ने जो जाल बनाया है ना उसमें ये आके फंस जाते हैं, ओके। तो आरबीसीज भी ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो हमने सॉलिड मास बनाया है, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हो गई, ब्लड की प्लेटलेट यूज हो गई, आरबीसीज यूज हो गए, डब्ल्यूबीसीज भी फंस गए होंगे, राइट, फाइब्रिनोजन भी यूज हो गया, प्रोथ्रोम्बिन भी यूज हो गया। तो अब क्या बचा, सिर्फ प्लाज्मा बचा, प्लाज्मा विदाउट दीज टू क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो ये जो ऊपर वाला है इट इज सीरम, ठीक है। और इफ यू रिमेंबर पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सीरम हाईली न्यूट्रिशियस है, क्योंकि ये जो सॉलिड डेंस मास बना है ना, जो सेपरेट हो गया ब्लड में से, उसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव एलिमेंट नहीं था, ठीक है, उसमें कोई ग्लूकोज नहीं आ गया, उसमें कोई ट्राइग्लिसराइड्स नहीं आ गए हैं, अमीनो एसिड्स नहीं फंस गए हैं, राइट। तो बेसिकली जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे वो भी सीरम के अंदर है, जितनी भी वेस्ट है, हाइपोजैंथीन, जैंथीन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, क्रेटीन, वो भी सब सीरम में है। तो सीरम इज अ हाईली न्यूट्रिशियस फ्लूइड, दैट्स व्हाई इसे सेल कल्चर मीडिया में भी यूज करा जाता है, राइट। सो दैट इज अबाउट प्लाज्मा। Okay, so we have seen what is plasma. It is just the fluid component of blood which constitutes 55% of blood. Okay. Now we'll take a look at what is fresh frozen plasma, right? Now we need to know what is fresh frozen plasma. So basically fresh frozen plasma में अपन क्या कर रहे हैं, we have taken plasma, ठीक है, किसी पर्सन से we have kind of extracted plasma, right, उसका ब्लड लिया, उसमें से प्लाज्मा निकाला। अब इस प्लाज्मा को हमको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। What we need to do, we need to preserve this plasma. अब इस प्लाज्मा को प्रिजर्व करने के लिए दिस प्लाज्मा इज टू बी स्टोर्ड अंडर -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो -20 टेम्परेचर पर हमको इस प्लाज्मा को स्टोर करना है, राइट, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, राइट। अब जब स्टोर करके इस प्लाज्मा को हमने रख दिया, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, राइट। सो दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मैक्सिमम कितनी ईयर्स तक प्रिजर्व रहता है, तो द रेंज इज 7 years, ठीक है। दिस प्लाज्मा कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशंस फॉर 7 years, 7 साल बाद तक हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। अब ठंड में क्यों स्टोर करना है, सबसे पहली चीज देखो, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, वी आर नाउ acquainted with the composition of the plasma very well, तो हमको पता है प्लाज्मा में क्या क्या है, I don't need to repeat it again and again. Now, अब अगर अपन इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसको ठंड में इसलिए स्टोर करना है जस्ट बिकॉज जो भी प्लाज्मा के अंदर चीजें हैं वो आपस में रिएक्ट ना कर जाएं, राइट। अब अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं तो दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेट्स सपोज सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, राइट। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे कंपाउंड्स ना बने, बहुत और तरीके के भी कंपाउंड्स बन सकते हैं व्हिच कैन बी पॉइजनस, राइट, जो इसको प्रिजर्व नहीं होने देंगे, तो इसलिए इसको ठंडे में स्टोर करना पड़ता है। ठंड में फायदा ये मिलता है कि कोई भी कंपाउंड है ना वो रिएक्ट नहीं करता, राइट। आई होप इन केमिस्ट्री यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। तो हर रिएक्शन को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, वो जो रिएक्शन है वो उस कम टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, और अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो शायद कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट बन जाए जो नॉर्मली नहीं बन रहा था। तो इसलिए हमको -20 डिग्री सेल्सियस एक हमने वायबल टेम्परेचर लिया है जिसमें प्लाज्मा में जितनी भी चीजें दे डोंट रिएक्ट। अब क्योंकि वो चीजें रिएक्ट नहीं करती हैं, दैट इज द रीजन जो प्लाज्मा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं होती हैं, राइट, रिएक्शंस नहीं होती तो प्रिजर्व रहता है, दैट इज वी कॉल एज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज द नीड टू प्रिजर्व दिस, ठीक है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत क्या है। इन कोविड टाइम्स
अभी जो कोविड-19 हमारा आया है, राइट, उस टाइम पे एक ट्रीटमेंट मेथड जो यूज हुआ था दैट वाज प्लाज्मा थेरेपी, राइट, दैट वाज प्लाज्मा थेरेपी. I'll come back to this in just a minute, right? अब ये तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, ठीक है, कि होता क्या है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. Now one more thing that I want that you guys should be knowing is कि अगर देखो, अगर हमने इस प्लाज्मा को देखो -20 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में स्टोर करा है ना, तो ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बना प्रिजर्व रहेगा. लेकिन लेट सपोज मैंने इस पर्सन से प्लाज्मा लिया, ठीक है, मैंने प्लाज्मा लिया, हाँ ठीक है, आई हैव टेकन द प्लाज्मा फ्रॉम दिस पर्सन. व्हेन आई हैव टेकन द प्लाज्मा, उसके बाद जब मैंने इसको इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में डाला, यहां से यहां तक ये जो ड्यूरेशन थी यहां तक मान लो, ठीक है, मतलब पर्सन से प्लाज्मा लेके उसको -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने के बीच में अगर मैंने लगा दिए 9 घंटे 9 आवर्स, या लेट्स सपोज 22 लेट्स से 12 to 20 आवर्स, ठीक है, 12 to 20 आवर्स लगा दिए, तो प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, इतनी देर में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है. अगर तो मैंने प्लाज्मा लिया और उसे -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में नहीं रखा 12 से 20 घंटे तक, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट. व्हाट इज द वायबल टाइम? नाउ इफ वी वांट टू, I am writing, in order to conserve clotting factor, CF is for clotting factors of plasma, it is to be preserved under 6 hours after collection of sample. तो सैंपल कलेक्शन के 6 घंटे बाद ही इसको -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रख देना होता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व और इन ऑर्डर टू कंजर्व द क्लॉटिंग फैक्टर्स. अगर 6 घंटे के अंदर नहीं रखा या 7 घंटे के अंदर नहीं रखा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. तो ये मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था, राइट. नाउ यू नो व्हाट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ओके. अब इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को कभी कभी इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी यूज करते हैं, और कभी कभी ये जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है ये यूज होता है प्लाज्मा फेरेसिस के लिए, राइट. नाउ व्हाट इज प्लाज्मा फेरेसिस? प्लाज्मा फेरेसिस इज थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज. इट इज थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज. मतलब अब कोविड टाइम में इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. कोविड टाइम्स में क्या होता था, लेट्स सपोज there is a person, there are two person A and there is a person B, ठीक है. A person जो है उसको कोविड हुआ, ठीक है, उसकी बॉडी में वायरस आया एंड ही रिकवर्ड, वो ठीक हो गया, तो उसके ब्लड में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बन जाएंगे. ये तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो 12th क्लास में था बायोलॉजी में उसमें पढ़ा होगा कि कोई अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड हुआ किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है बॉडी में. तो A person got infected with COVID and now in his blood there are antibodies against the COVID. Now here the B person, अब B person को उसके बाद जब A person ठीक हो गया उसके बाद इस B person को अगेन कोरोना हुआ, राइट. कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट करा इसको, तो इसको भी क्या हो गया, कोविड, राइट. नाउ टू ट्रीट दिस पर्सन वी नीड टू इंजेक्ट एंटीबॉडीज, ठीक है. इसकी बॉडी से एंटीबॉडीज लेके हमको इसकी बॉडी में डालनी है ताकि वो एंटीबॉडीज इसके बॉडी में जो प्रेजेंट कोरोना वायरस है उसको भी मार दे, राइट. तो दिस इज डन बाय द एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा. हम इसका प्लाज्मा लेंगे ए पर्सन को और बी पर्सन में इंजेक्ट कर देंगे. दिस इज प्लाज्मा फेरेसिस, थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, राइट. तो यही हुआ था कोविड-19 में, प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जाना गया, राइट. सो दिस इज अबाउट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. नाउ विल मूव टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो प्लाज्मा प्रोटीन्स दे फॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा, एंड in all the kind of plasma proteins that are there in the blood, only 3 proteins are widely studied. So in these plasma proteins we are going to study 3 plasma proteins, and basically जैसे अपन ने आरबीसी काउंट को देखा था, पर 100 ml ब्लड में आरबीसीज थे 4 to 4.5 to 5 lakhs per 100 ml of blood.
वैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन्स की अगर काउंट देखी जाए तो दे आर 6 to 8 grams per 100 ml of blood. So per 100 ml of blood, this is the count of RBCs, right? Now, no, not of RBCs, of the plasma proteins. Now there are three proteins: albumin, globulin, and fibrinogen, right? So first is albumin. Now this albumin protein forms 54% of this 6 to 8 grams. ठीक है, मतलब बेसिकली 100 ml ब्लड में 6 से 8 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं, उन 6 से 8 ग्राम में से भी 54% एल्ब्यूमिन है, राइट? So this is the most concentrated plasma protein present in the blood. Now albumin, the molecular weight, if we talk about the molecular weight of albumin, then that is 66,000, right? So 66,000 is the molecular weight of albumin. Also it is synthesized only in liver, right? In textbooks you will find it written exclusively synthesized in liver. मतलब ये जो हमारा एल्ब्यूमिन है उसकी फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लिवर में करी जाती है, राइट? तो अगर कभी लिवर की डिजीज हो गई, लिवर की कोई बीमारी हो गई, लिवर को कोई डिजीज हो गया, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी, राइट? सो दैट इज वन थिंग, इट इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिवर, और कहीं पे इसका सिंथेसिस नहीं किया जाता. दैट इज वन थिंग. नाउ albumin has the smallest diameter among all the plasma proteins. So it has the smallest diameter among all the plasma proteins that are there, right? So it is the smallest diameter also. Now in albumin, one thing that we need to know is, because it is having smallest diameter, it appears in urine. It appears in urine early during glomerulonephritis. Now what is this? Let's try to understand this, right? Now basically in 11th standard in renal or excretory physiology, you must have read something about what is Bowman's capsule, what is glomerulus, what is filtration membrane. ठीक है, तो एक बार उसी के ऊपर अपन वापस आएंगे. So this is the Bowman's capsule that I am drawing. Right, this is the Bowman's capsule and this is the PCT here. From here, the afferent arteriole is coming, and from here the efferent arteriole is going. And in this part, we have the formation of glomerulus, because many capillaries are forming a cluster here, so that leads to the formation of glomerulus. Now what happens? Can you see this layer and this layer? This is the visceral layer of Bowman's capsule. मतलब ये Bowman's capsule की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर हमारे पास glomerulus की मेम्ब्रेन है, ठीक है? glomerulus की capillary membrane. So from red color I am drawing glomerular capillary membrane. So this is the glomerular capillary membrane. There are the, यहाँ पे हमारे पास cells हैं, ठीक है? इसी के just नीचे we have these kind of cells. तो ये जो cells हैं, they are present in Bowman's capsule. और ये वाले जो cells हैं, they are present in capillary membrane of obviously glomerulus. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं glomerulus की. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड होगा, क्योंकि ये पूरी कैपिलरी है, तो यहाँ पे क्या है? पूरा ब्लड है. अब लेट सपोज नॉर्मली, एक बार नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं. नॉर्मली क्या है? ये अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का जो साइज है वो लेट सपोज इतना है. दिस इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन. तो कैन यू सी, यहाँ पे जो गैप है उसमें से एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है? अब जो चीजें यहां से यहां क्रॉस कर गई, मतलब इधर से इधर आ गई, वो क्या बन जाती है अल्टीमेटली? उनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है? जो भी चीज यहां से फिल्टर होगी यहाँ पे आई और फिर वो जाती है पीसीटी में, लूप ऑफ एनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में अल्टीमेटली चली जाती है, मतलब वो फिर यूरिन में चली जाएगी, राइट? यूरिन में हमें दिखेगी.
अनलेस एंड अनटिल इट इज रीअब्सॉर्ब्ड। ओके, तो एल्ब्यूमिन का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, ऐसा साइज है इसका। अब ग्लो, अच्छा, नॉर्मल कंडीशंस में एल्ब्यूमिन कैन नॉट पास द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, हेंस इट विल नॉट अपीयर इन यूरिन, यूरिन में नहीं दिखेगा। अब अगर अपन बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ये समझ लो कि ग्लोमेरुलस की कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो गई है, टॉर्न हो गया, डैमेज हो गया एपिथेलियम। तो लेट्स सपोज यहाँ पे डैमेज हो गया, यहाँ के सेल्स हट गए, ठीक है। अब यहाँ के सेल्स हट गए, या यूं बोल दो कि यहाँ के सेल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा आ गया, सो एट दैट टाइम दिस एल्ब्यूमिन विल ऑब्वियसली क्रॉस यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्लाज्मा प्रोटीन्स में से सबसे छोटा प्रोटीन यही है, इट इज द स्मॉलेस्ट, इट हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर अमंग ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये सबसे पहले दिखता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिल्ट्रेट में और अल्टीमेटली यूरिन में आ जाएगा। तो यही का भी मैंने पॉइंट लिखा, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर अमंग ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स अर्ली इन यूरिन ड्यूरिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जब भी किसी पेशेंट को होगा तो उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन के जो मॉलिक्यूल्स, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो पाया जाएगा, राइट। दैट इज वन थिंग अबाउट एल्ब्यूमिन। अनदर थिंग इज दैट एल्ब्यूमिन it maintains oncotic pressure. It maintains oncotic pressure and hence prevents edema formation. Will be blood physiology में ही आगे अपन पढ़ेंगे capillary pressures, ठीक है। तो उसमें हमको और अच्छे से समझ आएगा, but just for now I'll make you understand this point in a very brief kind of view. Okay, so in oncotic pressure यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। Oncotic pressure, right? Let's suppose this is a capillary, right? This is a blood capillary, और यहाँ पे हमारा टिश्यू है। तो टिश्यू में क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। इन सेल्स के बीच में गैप होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। तो दिस इज द ये दो सेल्स के बीच में जो गैप है, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, अब नॉर्मली क्या होता है, जब कैपिलरी ब्लड लाएगी टिश्यू लेवल पे, तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन देगी और टिश्यूज को कार्बन डाइऑक्साइड देंगी। नॉट ओनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत चीजें एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पे ग्लूकोज आया, वो ग्लूकोज टिश्यूज के पास चला जाएगा, टिश्यू अपनी यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जितनी भी वेस्ट है वो कैपिलरी को दे देंगे। मतलब कुछ ट्रांसपोर्टेशन इधर से इधर होती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कैपिलरी से टिश्यू के पास होती है। क्लियर, इतना तो समझ आया। अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर अभी के लिए अपन ये समझ लेते हैं कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन अपने चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से पकड़ के रखता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन में, वाटर को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा है, ठीक है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स को इसने पकड़ के रखा है, अब ये पानी को जाने नहीं देगा टिश्यू के पास, क्योंकि इसने पानी को पकड़ के रखा है, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन विद द वाटर स्फीयर अराउंड इट, मतलब एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये मेरा एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल, और इसने अपने साथ क्या बना रखे हैं, इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल्स का एक स्फीयर बना रखा है, राइट। सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन विद द स्फीयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड इट exerts a pressure on the capillary wall. exerts a pressure मतलब ये जो मॉलिक्यूल अब बना है, ये क्या करेगा, कैपिलरी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसी प्रेशर को अपन बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर। सो ऑनकोटिक प्रेशर, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक्स। ऑनकोटिक प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज exerted by the albumin protein, or rather we should say oncotic pressure is the osmotic pressure which is exerted by plasma proteins in the vascular compartment or in the blood vessels. In the vascular compartment or in the blood vessels. Simply you can write this. अभी क्या होगा, अब ये पानी को टिश्यू के पास जाने नहीं देगा, ठीक है। जितना पानी टिश्यू को चाहिए वो उतना पानी इधर चला जाएगा टिश्यू के पास, बाकी फालतू का पानी ये टिश्यू के पास नहीं जाने देगा। अब क्योंकि फालतू का पानी ये टिश्यू के पास नहीं जाने दे रहा, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व रखना है। रिमेंबर प्लाज्मा में 92% पानी होता था, ठीक है। तो ये उस पानी को अपने पास बचा के रख रहा है कि ब्लड का जो फ्लूइड कैरेक्टर है वो मेंटेन रहे। अगर सारा का सारा पानी टिश्यू में चला जाएगा तो ब्लड तो बिन पानी का हो जाएगा, राइट। तो दैट शुड नॉट हैपन। अब लेट्स सपोज ऑनकोटिक प्रेशर की मेंटेन कर रहा है। व्हाट इज दिस इडीमा? इडीमा पे अपन थोड़ी देर में आते हैं, राइट। फर्स्ट विल कम बैक टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन चला जाता है यूरिन में, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां पे दिखेगा अपन को, यूरिन में दिखेगा।
अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्योंकि यार यूरिन में पास आउट हो रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ब्लड में इसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है? ब्लड में इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो गई है। अब क्योंकि ब्लड में इसकी कंसेंट्रेशन कम हो गई है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स एल्ब्यूमिन अराउंड इटसेल्फ हैविंग अ वाटर स्फीयर, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन ही अपने चारों तरफ वाटर का स्फीयर बना के रखता था। अब क्योंकि एल्ब्यूमिन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड है वो भी कम हो रहे हैं, राइट। अब क्योंकि ऐसा हो रहा है, पानी को पकड़ के रखने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अब पानी क्या करेगा? इट विल ooze out in the tissue space, water molecules will ooze out in the tissue space। सारा का सारा पानी, सारा का सारा तो नहीं, ज्यादा, पहले इतना नहीं जाता था, ज्यादा जाने लग गया। मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल गो एंटर द इंटरस्टिशियल स्पेस, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जितना पानी एक सेल को चाहिए नहीं था, उतना पानी सेल के पास आ रहा है। सेल विल नॉट एक्सेप्ट वाटर, ठीक है, नहीं तो सेल का वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सेल स्वेल हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप वो सेल वाटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज सेल इज हैविंग सफिशिएंट वाटर, ये जो जितना भी पानी आया है दैट इज एक्स्ट्रा, राइट, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एल्ब्यूमिन। तो अब क्या होगा? टिश्यू फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। दिस इज इडीमा, राइट। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में क्या कर रहा है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रख रहा है, पानी को पकड़ के रख रहा है और प्रिवेंट कर रहा है इडीमा की फॉर्मेशन। जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, एट द टाइम व्हेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज देयर, जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तो एल्ब्यूमिन यूरिन में चला जाएगा, तो एल्ब्यूमिन की जो कंसेंट्रेशन है वो ब्लड में कम हो जाएगी। अब क्योंकि एल्ब्यूमिन की कंसेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी, उस वजह से इडीमा की फॉर्मेशन हो जाएगी, टिश्यू स्पेस में बहुत ज्यादा पानी जाने लगेगा, राइट। So this is about albumin protein. These points are very important, especially these 2 points are clinically very important, right? Now we'll move to globulin. Before moving to globulin, I will just like to draw a flow chart of what we have discussed in albumin. Albumin में जो हमने इतनी बड़ी glomerulonephritis से edema तक की कहानी पढ़ी, उसको एक flow chart में concise form में मैं लिख देता हूँ, right? So first we discussed that in glomerulonephritis, gap between cells of filtration membrane increases. अब upper arrow indicates increases, right? Gap between the cells of filtration membrane, or rather we shall write space, increases, right? Now when this happens, albumin protein passes into filtrate. अब क्योंकि वो फिल्ट्रेट में आ रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस इन प्लाज्मा, मतलब ब्लड में, वही ब्लड में बोल सकते हैं, कंसेंट्रेशन एल्ब्यूमिन की डिक्रीज हो गई। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर, राइट, और जिसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी एडिमा, राइट। सो फ्रॉम glomerulonephritis we have reached to edema. Edema formation occurs in such a manner, so you can draw this flow chart rather than writing that long story, right? I think this is more concise. Now we'll move to globulin. So the next plasma protein is globulin. Globulin constitutes 38% of the plasma proteins. मतलब जो हमने पढ़ा था ना, 6 से प्लाज्मा प्रोटीन पर 100 ml ऑफ द ब्लड में 6 से 8 ग्राम्स रहते हैं, राइट। तो उसमें से 38% ग्लोबुलिन रहेगा, 54% एल्ब्यूमिन, राइट। नाउ इन द ग्लोबुलिन द मॉलिक्यूलर वेट इज, or there is no specific molecular weight, there are different type of globulins which we'll be discussing about. The molecular weight ranges from 90,000 to 156,000. Okay, that is one thing. Another thing, it is synthesized in, first is obviously in liver it is synthesized, right? Second, it is synthesized in reticulo endothelial system. Third, it is synthesized by the plasma cells of the body, or don't write plasma cells, rather write it is synthesized by B lymphocytes.
there is a certain type of plasma globulin protein that is obviously gamma globulin. It is synthesized by B lymphocytes. When we'll talk about immunity, जब हम आगे immunity की बात करेंगे immunology में, then you will understand कि क्यों B lymphocytes globulin को बनाता है. Now this globulin protein, as I mentioned, is of three types. It is alpha, beta, and gamma. These alpha and beta globulins, they are involved in transport of or transportation of fat soluble substances. तो ये वो करते कैसे हैं? Basically, let's suppose this is an alpha globulin. ये क्या करेगा? अगर कोई भी fat soluble substance है, उसके साथ bind कर लेगा, ठीक है? और एक जगह से A जगह से उसको B जगह पे लेके आ जाएगा. और जब B जगह पे लाएगा तो वो टूट जाएगा, एक तो अल्फा ग्लोबुलिन प्लस दैट फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, तो वो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस इस बी जगह पे चला जाएगा. तो इस हिसाब से इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है. अब एग्जांपल्स ऑफ दोस ग्लोबुलिन जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, कौन कौन से ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है? फर्स्ट इज हैप्टोग्लोबुलिन, इट ट्रांसपोर्ट्स हीमोग्लोबिन. सेकंड इज सेल्यूलोप्लाज्मिन, it transports copper, right? Copper ions. Third is transferrin. अब क्योंकि ferrin word आ रहा है, that means it transports iron. Okay? Now gamma globulins. Now gamma globulins are basically antibodies. Antibody chemically gamma globulin है. अगर कोई पूछेगा antibody किससे बनी है, that is gamma globulin. जैसे हम बोलते हैं प्रोटीन किससे बने हैं, अमीनो एसिड्स, वैसे ही एंटीबॉडी किससे बनी है, गामा ग्लोबुलिन से. So gamma globulins, they form antibody and hence play a role in defense mechanism. Antibodies कब काम आती हैं? Defense mechanism में, right? So it plays a role in defense mechanism. कौन कौन सी antibodies we are having in the body? IgA is there, IgM, IgD, IgG, right? IgA is always present in the saliva. Saliva में होती है IgA, right? This is the point. Okay. So that is about albumin protein. So अब albumin protein में सबसे important चीज ये है, अगर तो लिवर की कोई बीमारी है, लिवर का कोई डिजीज हो जाता है, तो the question is क्या ग्लोबुलिन का जो लेवल है ब्लड में कम होगा या नहीं होगा? So the answer is नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लिवर सिर्फ लिवर नहीं बना रहा है, इसको बी लिम्फोसाइट से बना रहे हैं, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में बना रहे हैं. सो ड्यूरिंग लिवर डिजीज, यू कैन राइट दिस पॉइंट अबव द मार्जिन इन योर नोटबुक्स. ड्यूरिंग लिवर डिजीजेस, globulin levels in the blood is not altered much, but albumin level falls drastically. बहुत तेजी से albumin का जो लेवल है वो गिर जाता है. Right? Now we'll move to the last plasma protein that is left, that is fibrinogen and prothrombin. Now fibrinogen, the molecular weight of fibrinogen is, so the molecular weight of fibrinogen is 340,000 or 3,40,000. Now it is involved in clotting, right? And I think now you must be aware of the function of fibrinogen very well. Okay, so it is involved in clotting of blood, right? Now basically it is an inactive protein. Okay, remember in stomach we have studied pepsinogen. So what we say, जिस भी एंजाइम के पीछे ओजन लग जाए, जिस भी प्रोटीन के पीछे ओजन लग जाए, that is inactive. So it is also an inactive, we can say, protein. Okay, it gets activated by the action of thrombin on the fibrinogen. So fibrinogen के ऊपर जब thrombin act करता है, it is converted into fibrin and then it performs the function of clotting, right? So it is acted upon by thrombin protein and then only it is going to perform the clotting function. The last point in fibrinogen is that it is asymmetrical in shape. This protein is asymmetrical in shape. It is asymmetrical in shape and hence it also contributes to viscosity of blood. मतलब इसकी शेप थोड़ी altered है, the shape is not symmetrical exactly, so that's why जो viscosity of blood है, मतलब जो गाढ़ापन है ब्लड का, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, right?
Also, albumin protein also contributes in the viscosity of blood because it is also ellipsoid shape. It is also having an ellipsoid shape. Right. The next protein that we have to discuss about is prothrombin. It is also having same nature as of fibrinogen. The molecular weight of prothrombin is, I think, around 68,000. Right. It is also involved in clotting of blood. Okay. Along with fibrinogen, it also plays a role in clotting of blood. So today we have discussed all the plasma proteins, all the 4 plasma proteins that we talked about. We discussed about albumin, right? What all clinical cases related with albumin, that also we have discussed. We talked about globulin, we talked about fibrinogen, we also talked about prothrombin, right? So in the next video, we'll be talking about the functions of both blood and plasma protein because they're very interrelated. So I have thought to introduce them in the same lecture, right? Thank you.